Good morning, everyone. So, how are you, students? Chapter number 22. We are proceeding with this chapter, and one of the most important adjustments we are going to do today, which will be required in your 12th standard also, that is manager's commission on net profit. All right. So, what is this manager's commission on net profit? First of all, you have to understand its concept. What is this and why do we provide? And later on, we will proceed with practical. Okay. Students, what do we calculate from profit and loss account? Hurry up, please. Net profit. Okay. So, company has to pay, or business, it can be your partnership and sole proprietor, and in fact here we are studying about the partnership and sole proprietor especially. So, they have to pay the income tax on these profits. Okay. Okay. We are generating the profit with the help of resources, employees, right? And management is helping, isn't it? Yes, managers are managing the resources. Okay. Sometimes you have the size of your business is large. Either it is sole proprietor or partnership, the size of business is large, and you have appointed manager. You are doing something else and manager is doing something else. So manager is managing your business, and the success of anything depends upon the management. If you have a good management, you get good results. If you have a poor management, you don't get that much good results. All right. So, and what manager is getting? Yes, manager is doing the work, he is managing my business. What is he getting in return? He is getting salary. All right. So somewhere this tendency arises between the people that I'm doing this work, okay, and I'm getting salary for this, right? If they get sluggish and they stop doing work properly, or you can say the lack of motivation is there. So we have one method to motivate them. We tell them that we will provide you commission on the net profit other than the salary. Apart from the salary, we will provide you commission also. Are you understanding, students? Suppose we have decided 50,000 per month salary of a manager and we will be paying, right? And we have added one more thing, that whatever the profit we will get, net profit jo bhi hame milega, we will give you 10% commission on that. So now what manager will try? Yes, manager will try to increase the profit or decrease the profit, or he will be stable. Will he be doing the efforts to increase the profit or no? So he got motivation from this, and he know that he has a direct relationship with the profit. In fact, the owner has a direct relationship with the profit because the whole profit goes to the owner. Okay. But we have given a little part to the manager also. If you work hard and you help us to increase your net profit, so we will be paying you 10% on that. Got it? So this is the logic behind this adjustment, right? Now, why this adjustment is there? Because, listen please, because this is always given at the end. You know, when we calculate profits, then we proceed with this adjustment. It is not given in between of the year. Why is it not given between the year? Mid of the year. Why? Because we have to calculate the net profit, and net profit is always calculated at the end of the year. All right, students? So this is your adjustment. Okay. How does this work? And we have two ways to do that. So this is your profit and loss account. All right. And here we have taken all the expenses, and here we have gross profit transferred from trading account. Suppose it is 40,000, right? 2,000 other income we have taken, and here the total income side is your 42,000, and suppose 20,000 expenses we have done in all. Okay, this is indirect expenses. Understood, students? Please don't. क्या problem है तुम्हारी? It is only you who is moving here and there. Just sit quietly. So what is the remaining profit? 42 में से 20 गया तो कितना आ गया? 22,000. You just stand up from here once. Get up. Go at back.
Hurry up, don't waste the time. So this is what 42,000. If you don't understand, ask here only. Okay? So I'm telling you in Hindi also, 42,000 आपका क्या है? Income side है. And out of this we have given 20,000 indirect expenses. Indirect expenses देने के बाद कितना आपका profit बना? This is to net profit. Transfer to capital account. ऐसा हम करते थे, right? Now the question is telling, provide 10% commission to the manager on net profit before charging such commission. The first one it is telling, provide 10% commission to manager on net profit. The important one is before charging such commission. I'm sorry. Well, don't try to understand the handwriting, just focus on my words. What am I telling? Provide 10% commission to manager on net profit, and this is what? Before charging such commission. इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? मैनेजर को 10% कमीशन दो, प्रोवाइड कराओ, किस पे? नेट प्रॉफिट पे. और कौन सा नेट प्रॉफिट? वी हैव टू काइंड ऑफ नेट प्रॉफिट, आई टेल यू. कौन से नेट प्रॉफिट पे? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. स्टूडेंट्स, मैनेजर को कमीशन देंगे तो वो खर्चा है या नहीं बिजनेस का? जल्दी बताओ. मैनेजर को कमीशन देंगे तो बिजनेस का खर्चा है, इनडायरेक्ट है, परचेज पे तो है नहीं. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? जल्दी कहाँ जाएंगे? P&L में. तो ये कमीशन में जब कैलकुलेट कर लूंगी तो ये भी तो मुझे P&L में ही दिखाना होगा. आर यू गेटिंग? तो ये 22,000 प्रॉफिट कौन सा है? क्या इसमें आप मैनेजर का कमीशन चार्ज कर चुके हैं? हैव यू चार्ज द मैनेजर्स कमीशन? सो इन इंग्लिश इफ वी टॉक, व्हाट काइंड ऑफ कमीशन इज दिस? आई मीन सॉरी, नेट प्रॉफिट इज दिस. दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. हैव यू अंडरस्टूड? तुषार समझ आया? नहीं आया? ये कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है. यस, यस और नो? ये वाला जो 22,000 है, ये क्या है? कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है. ये समझ आया? तुषार इधर देखोगे तो समझ. एवरीवन अंडरस्टूड दैट? सिंपल सी बात है, चाहे आपने ये चैप्टर किया है नहीं. लव, ध्यान से देखो इधर. ये P&L है, 42,000 इनकम साइड है, 20,000 हमारे एक्सपेंसेस है. चैप्टर किया है ना? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये नेट प्रॉफिट आ गया 22,000. ठीक है? हेलो लव, आपसे बात कर रही हूँ. 22,000 नेट प्रॉफिट है. ठीक है? तो मैनेजर का कमीशन जब हम देते हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वी हैव टू शो इन P&L's डेबिट साइड. तो क्या मैंने यहाँ पे मैनेजर का कमीशन दिखाया है? तुषार, यू आर जस्ट कंप्लीटली मैड. यहाँ दिखाया क्या हमने मैनेजर का कमीशन? हेलो, दिखाया है? नहीं दिखाया. तो ये जो 22,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. इज दैट ओके? तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडजस्टमेंट में आपको ये मिलेगा, प्रोवाइड 10% कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट, on net profit before charging such commission. I think this is before charging, there is no problem. Yes or no? Yes. तो 22,000 है हमारा, इस पे कितना देना है? 10% देना है. तो कितना आ गया? 2,200 is manager's commission I have calculated. Is that clear? So all these things, all these adjustments you will be doing in the rough work. ठीक है? अभी मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखा दिया, आपको ये फाइंड आउट नहीं कर देना है अभी. अगर ये फाइंड आउट कर देंगे तो फिर आगे आपको इसको प्रोसीड करना पड़ेगा. ठीक है? तो आप क्या करेंगे, ये आपको रफ में कैलकुलेट कर लेना है कि इतना मेरा नेट प्रॉफिट आया एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन. आपने कैलकुलेट करना. ठीक है? नाउ व्हाट टू डू, यू विल बी शोइंग इट हियर. टू मैनेजर्स कमीशन, हाउ मच? 2,200. तो कितना आया था आपका प्रॉफिट? 22,000 था. 22,000 था, जिसमें से 2,200 आपने माइनस किया. तो दिस कम्स, इफ माय कैलकुलेशन इज करेक्ट, दिस इज 19,800. तो ये क्या है? क्या है ये?
net profit. Is that clear, students? Clear to everyone what we have done? किसी को पूछना है तो यही पूछ लीजिए, 2 मिनट लगेंगे, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी. यस, समझ आया बेटा आपको? एक बार दोबारा, ये कैलकुलेशन या पूरा सिस्टम? पूरा. कौन बोला? आप बोले, ठीक है. मैनेजर का कमीशन होता है व्हेन वी वांट टू मोटिवेट द मैनेजर फॉर द बेटर वर्क, कि उसको सैलरी मिलती है मैनेजर को. दोबारा सुन लीजिए सब, एंड दोज हु आर स्टेइंग एट होम यू शुड आल्सो फोकस ऑन दैट इफ यू मिस द. सो उसको सैलरी देते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम द सैलरी वी प्रोवाइड देम कमीशन, अच्छा काम कराने के लिए, क्योंकि सैलरी तो मिल ही रही है, आप अच्छा करो बुरा करो, समथिंग लाइक दैट, यू नो. तो हमने उसको डायरेक्ट प्रॉफिट के साथ अटैच कर दिया है कि जो भी प्रॉफिट होगा उस पर हम आपको 10% प्रॉफिट देंगे, सॉरी कमीशन देंगे. ठीक है, समझ आ रहा है ना? 10% हम कमीशन देंगे. नाउ सपोज यू आर अ मैनेजर, सो व्हाट विल यू ट्राई? कंपनी का 50,000 का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, तो आपको कितना कमीशन मिलेगा? 10%, 5,000. अब आप क्या चाहेंगे कि भगवान करे कंपनी का 5 लाख का प्रॉफिट हो, तो कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा. ठीक है, राइट. तो ये सैलरी के अलावा दिया जा रहा है. दिस इज मैनेजर्स कमीशन, एंड दिस इज गिवन इन 2 वे. दिस इज गिवन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और अभी हम पढ़ेंगे ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे इट इज नॉर्मल P&L जो आप प्रिपेयर करते हैं, पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, सभी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, एवरीथिंग यू विल बी डूइंग एक्सेप्ट मैनेजर्स कमीशन. सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट रहने देंगे. रफ में आप कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट. मैंने रफ में कैलकुलेट किया, कितना आया? 22,000 आया मेरा नेट प्रॉफिट. ठीक है, अब 22,000 पे क्वेश्चन कह रहा है प्रोवाइड कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग. तो ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें से मैंने कमीशन नहीं दिया है, सो वी कॉल इट बिफोर चार्जिंग कमीशन. ओके, तो इस पे मैंने 10% कैलकुलेट किया, दैट कम्स 2,200, राइट. तो 22,000 मेरा नेट प्रॉफिट था, जिसमें से 2,200 मैंने मैनेजर को कमीशन दे दिया, तो बाकी बचा मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 19,800. क्लियर है टू एवरीवन? लव, कुछ समझ में आया? ओके, नाउ आई जस्ट चेंज द क्वेश्चन. My statement, it is telling provide 10% commission to manager on net profit after charging such commission. क्लियर है? क्या कहा इन्होंने कि मैनेजर को कमीशन दो. सी हाउ दे आर प्लेइंग विद अस. मैनेजर को कमीशन दो 10%, उस प्रॉफिट पे दो जिसमें से कमीशन दे रखा हो. कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. नेट प्रॉफिट वो हो जिसमें से कमीशन चार्ज हो रखा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए, हमारा प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट कितना था? 22,000. ये मैंने रफ में कैलकुलेट कर लिया है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो 22,000 आई हैव कैलकुलेटेड इन रफ, राइट. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट इज दिस? क्या इसमें से हमने कमीशन दे रखा है? नो, राइट. तो ये कौन सा वाला प्रॉफिट है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. एंड इस पे मैं 10% नहीं दे सकती. क्यों नहीं दे सकती? उन्होंने कहा है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वो प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें से कमीशन चार्ज कर रखा हो. ये क्या कहानी है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, राइट. कि ये तो एक रिडल हो गई हमारे लिए. उसमें से कमीशन दे दो और फिर उस पर कमीशन लगाओ. So there is a formula for this, right? What is that formula? That's very very simple. Before वाले में क्या करते थे? 22,000 में 10% करते थे, this way. All right? Now the formula is, क्योंकि ये हमारा आफ्टर चार्जिंग है, तो ये जो आपने 100% लगाई है, इसमें जो भी परसेंटेज है उसको प्लस कर देंगे. That's all. तो यानी कितना हो जाएगा? 110. बस. अगर ये 5% होता तो क्या करते? 105. 7% होता तो 107, राइट. 15% होता तो 150. क्लियर है सबको क्या करना है? दैट्स ऑल. सो नाउ द कमीशन इज 2,000. तुषार समझ आ रहा है? नीचे देख रहे हो तुम?
So now I have calculated commission and this was my rough part, right? So I don't have to write it first. I will write to managers commission 2000. Okay. Now 22,000 was the profit before charging. 2,000 हमने commission दे दिया. तो net profit कितना आ गया? 20,000 to net profit transfer to capital. Now you can verify. ये कौन सा net profit है आपका? After charging such commission. Everyone look at the board. ये 20,000 कौन सा कमीशन है, सॉरी ये कौन सा नेट प्रॉफिट है जिसमें से कमीशन आप माइनस कर चुके हैं. समझ आ रहा है लोग? हरिओम, समझ आ रहा है निखिल? तो ये वो वाला प्रॉफिट है जिसमें से आप कमीशन माइनस कर चुके हैं, राइट? तो इस 20,000 पे अगर आप 10% देते हैं आफ्टर चार्जिंग वाले को तो दैट इज 2,000 हैंस प्रूव्ड. ऑलराइट, समझ आ गई ये कॉन्सेप्ट? ओके, हियर आई हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट इन डिटेल, बट दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, नटशेल में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बिफोर चार्जिंग है तो 10/100 सीधा परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है? और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो उसमें जो परसेंटेज है वो प्लस कर देंगे. और ये एडजस्टमेंट कब करते हैं? व्हेन यू कंप्लीट द होल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, you have passed all the adjustments, everything you have done just at the end, finally when you calculate your net profit. Clear? So let us take some other adjustments. Now next it is telling, okay, this was the thing how to calculate. One part has left, so this is single sided. Yes please, all the adjustments goes at two places. All the adjustments go at two places. The first one, where did we kept it? Where did we keep this adjustment? We kept this adjustment in P&L's debit side. मैनेजर का कमीशन आपने कैलकुलेट किया? Yes or no? कैलकुलेट करके कहाँ दिखाया हमने? एक बार P&L के डेबिट में दिखाया था ना? यहाँ पे आपने दिखाया मैनेजर्स कमीशन 2000, ठीक है? दूसरी बार कहाँ दिखाएंगे? जस्ट थिंक एंड टेल मी, क्या आप पे कर चुके हैं? अच्छा, पे कर चुके होते तो फिर दिखाने की जरूरत ही कहाँ थी? यस, वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट, अभी तो हमने कैलकुलेट किया है, पे कहाँ किया है? Just at the end of the year when we are calculating net profit, we have calculated only, right? So still this is outstanding. I have to pay to the manager. Are you getting my point? अभी हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है, पे नहीं किया. पे बाद में करेंगे, ठीक है? बाद में करेंगे तो ये क्या है? आपकी लायबिलिटी है. एंड लायबिलिटी गोज वेयर? बैलेंस शीट की लायबिलिटी की तरफ जाएगा. क्या? आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन. क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया? तुषार, नेक्स्ट एडजस्टमेंट. Yes please. Sometime it's given on page number 22.52. Sometime capital expenditure is wrongly treated as revenue expenditures. Capital expenditures are wrongly treated as revenue expenditure. For example, wages included 20,000 spent on the installation of a new machine. Yes, journal entry में बहुत अच्छे से हमने समझा था और किया था. आपने कोई गलती कर दी है. Now the thing is we have to rectify that mistake. हमें वो ठीक करनी है. वही आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है कि आपने yes wages पे किया. Wages कहाँ आता है? If I talk about the wages only, wages goes to the trading account. ठीक है? बट वो मैंने वेजेस किसको पे किया था? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी आई हैव पेड टू द लेबरर्स. मशीन्स को इंस्टॉल करने के लिए लेबरर्स को वेजेस पे किया गया था. तो जर्नल एंट्री में हमने सीखा था ये कहाँ आएगा? दिस इज कैपिटलाइज्ड. वी हैव टू ऐड दिस वेजेस इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी. फॉर दिस वी डेबिट द मशीनरी अकाउंट, नॉट वेजेस. ओके, बाय मिस्टेक व्हाट यू हैव डन, वेजेस में डाल दिया है. ठीक है? तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे आप? सपोज दिस इज योर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है. ठीक है? वेजेस इज गिवन 50,000. ओके, 50,000 का वेजेस दिया है एंड दे आर टेलिंग 10,000 की वेजेस दैट यू हैव स्पेंड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी.
बस इतना दिया है। क्या करेंगे आप, वेजेस में से माइनस करेंगे, ठीक है, 10,000 इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो वेजेस आपका बच गया 40,000 यू विल बी शोइंग, ऑलराइट, एंड द सेकंड प्लेस वेयर दिस विल गो, मशीन की वैल्यू में जाएगा, मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो असेट साइड में आपका यहाँ पे मशीनरी में जो भी है, मान लीजिए 1 लाख की आपकी मशीनरी थी, राइट, प्लस 10,000 वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी। इज दैट क्लियर व्हाट टू डू? ओके, इसी तरह से वाइस वर्सा ऑपोजिट हो सकता है कि आपने उसको रेवेन्यू में डाल दिया, सॉरी कैपिटल में डाल दिया जबकि रेवेन्यू होना था। गुड्स परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वर डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, ओके, परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वर डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। कोई चीज़ आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ली थी, वो बिल्डिंग में जानी चाहिए थी, आपने उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया। व्हाट टू डू, परचेज में से रिड्यूस कर देंगे और बिल्डिंग अकाउंट में प्लस कर देंगे। गॉट इट? आपने कोई चीज़ परचेज की किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की वैल्यू में जोड़ना चाहिए ना। आपने गलती से क्या किया, एज इट वॉज अ परचेज, बाय मिस्टेक यू हैव एडेड इन द परचेज अकाउंट में डाल दिया, बट परचेज अकाउंट में क्या जाता है, ओनली गुड्स। सो हाउ टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री, क्या करेंगे हम, परचेज में से माइनस कर दो, वो ठीक हो गया, एंड बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड कर दो, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, it's given that 2 lakh spent on the erection of a cycle shed were included in the repairs. These kind of things we have done. साइकिल शेड के लिए आपने कुछ अमाउंट स्पेंड किया था, लेकिन आपने उसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिया गलती से। इट इज़ नॉट अ रिपेयर। व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ साइकिल शेड तो यू हैव टू इंक्लूड इन दैट वैल्यू, ओके, तो रिपेयर में डाल दिया। अब क्या करेंगे, रिपेयर में से माइनस कर दो। रिपेयर कहाँ दिखाते हैं, वेयर टू शो द रिपेयर्स, P&L के डेबिट में, तो रिपेयर में से माइनस कर देंगे एंड साइकिल शेड या जो बिल्डिंग या जो भी है उसका जो हेड दे रखा होगा उसमें आप प्लस कर देंगे, ठीक है। सो वी हैव डन दीज वन। नाउ नेक्स्ट वन इज goods sold and dispatched but omitted to be recorded. Sometimes this happens, students. Yes, page number 22.56. गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने गुड्स बेच दी हैं, यस प्लीज, आपने गुड्स बेच दी हैं, डिस्पैच भी कर दिया, डिस्पैच मीन्स भेज देना, ओके। सो यू हैव सोल्ड द गुड्स, यू हैव डिस्पैच द गुड्स, राइट, आपके पास से चली गई हैं, लेकिन क्या हुआ, इस प्रोसेस में आप एंट्री करना भूल गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड्स बेच दी हैं, भेज भी दी हैं, एंट्री करना भूल गए, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया है, तो क्या करेंगे, गलती तो हो गई है, यस, आप क्या करेंगे, सिंपल एंट्री जो होनी चाहिए थी वो पास कर देंगे। इफ दे हैव गिवन द नेम ऑफ द पार्टी दैट यू विल बी डूइंग, अदरवाइज व्हाट एंट्री वी विल बी पासिंग। आप जब गुड्स बेचते हैं, गुड्स बेची थी जो आप एंटर करना भूल गए हैं, व्हाट टू डू नाउ, आप बेचते हैं तो सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। इफ यू रिसीव इन कैश देन कैश अकाउंट डेबिट, if Ram को बेचा then Ram account debit, and if nothing is given then debtors account debit to sales. So this entry we will be passing, and here we don't have to pass the entry because we are doing the final accounts. Entry का टाइम बहुत पहले जा चुका, तो हम यहाँ पे किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे, क्या एडजस्टमेंट दिखाएंगे, which two accounts are being affected, debtors and sales. Sales कहाँ दिखाते हैं आप, here the sales are there, जो भी अमाउंट है, और जिस भी अमाउंट का है प्लस क्या करेंगे, omitted to be entered, जितने भी अमाउंट की सेल्स है, मान लीजिए 10,000 की थी, वो आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? सेल्स की एंट्री करना भूल गए, सेल्स में जाके उसको ऐड कर देंगे, omitted to be entered कि आप पहले एंटर करना भूल गए, ठीक है। And second place, which where it is affecting debtors, and where goes the debtors, this comes to the asset side of the balance sheet, and this is what, debtors. So what are the value of debtor is given, let it be plus, you will add the
further debtors which you have already omitted. ठीक है, इट्स सिंपल कि आप एंट्री करना भूल गए, एंट्री तो हम कर नहीं सकते, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस एंट्री वी हैव टू पास. अगर एंट्री पास करनी हो, रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, तो दिस एंट्री वी हैव टू पास फॉर रेक्टिफाइंग दैट. तो यहाँ पे हमें एंट्री पास नहीं करनी, डायरेक्ट हमें अकाउंट्स में जाके उसको ठीक करना है. तो कैसे करेंगे? सेल्स में ऐड कर देंगे. अब आप कहेंगे क्रेडिट हो रहा है तो ऐड क्यों? क्योंकि सेल्स आर हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस. ओके, सेल्स बढ़ रही है तभी हम इसको क्रेडिट करते हैं. तो वी हैव एडेड इन द सेल्स अकाउंट एंड असेट्स के डेटर्स में आप ऐड कर देंगे. क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे. नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इनटू स्टॉक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. वाइस वर्सा. यहाँ पे हम सेल्स का मैटर भूल गए थे, अभी क्या है, आप परचेज करके आए हैं एंड यू हैव फॉरगॉटन टू पास द एंट्री. जस्ट पे अटेंशन. गुड्स परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इनटू स्टॉक. यस प्लीज. आप गुड्स परचेज करके लाए हैं, 5 बिग बंडल्स यू हैव परचेज्ड एंड यू हैव केप्ट नियर बाय योर स्टॉक. मीन्स आपने स्टॉक में इंक्लूड कर दिया, जहाँ पे आपकी गुड्स पड़ी होती हैं आपने वहाँ डाल दिया. समझ रहे हैं मेरी बात? गुड्स ला के रख दिए, परचेज करके लाए हैं, बट वो एंटर करना भूल गए बुक्स में. क्या करेंगे? अगर एंट्री की बात करें तो क्या एंट्री करेंगे? सिंपल कि आप परचेज करके आए हैं, क्रेडिट परचेज किया है, एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट. कैश पे होता है तो टू कैश, नेम ऑफ द पार्टी द नेम, अदरवाइज creditors, right? Purchase account debit to creditors. So this is the journal entry if the question comes for the rectification of error, or the journal entry simple. But here no journal entry, direct adjustments in the account. Yes, what to do? जो नाम है वहीं पे पहुंच जाएंगे. परचेज कहाँ मिलेगा आपको? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे आपको परचेज मिलेगा. परचेज मान लीजिए 10,000 का दे रखा है, ये अमाउंट आपका 2,000 का है, राइट? तो आपका परचेज इंक्रीज हो रहा है, दैट विल बी 12,000. एंड सेकंड प्लेस इज क्रेडिटर्स. वेयर वी फाइंड द क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स मान लीजिए 5,000 के थे ऑलरेडी, 2,000 का आपने क्रेडिट परचेज किया था तो आपके क्रेडिटर्स और बढ़ गए, सो 2,000 यू विल बी एडिंग. दिस कम्स योर 7,000. इज दैट क्लियर? समझ आ गया? किसी को पूछना है तो प्लीज डोंट बी हेजिटेंट एंड जस्ट आस्क. दिस विल टेक अनदर 1 मिनट. एडजस्टमेंट्स 2 जगह आती हैं बेटा, उसकी एंट्री करके देखो रफ में कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, और वहाँ पे आप जहाँ प्लस करना है प्लस करेंगे, माइनस करना है माइनस करेंगे. डोंट क्रैम द एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स को रटो मत, समझो कि उनका डेप्थ क्या है, क्या वो एक्सप्लेन कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो यू विल नॉट कमिट मिस्टेक. ओके. And last but not least, this is your sale of goods on approval basis. Yes, I have hit the nail on the head, student. This is the last entry, last adjustment, sale of goods on approval basis. Page number 58, 22.58. Yes, pay attention please. It needs a little clarification. What is this? Sale of goods on approval basis. Pay attention. Mr. Tushar, पढ़ने से आता तो घर बैठ के पढ़ लेते, बाद में देख लेना. I'm waiting for you. और देखना है तो yes. Sold goods on approval basis. You might have done the experience in your life. You go to the market and tell कि भैया आज मम्मी साथ नहीं आई हैं, एंड शी सेड कि मुझे दिखा के ही लेना, एंड यू आर नॉन टू दैट पर्सन. ऐसा नहीं है किसी भी अनजान के पास जाएं और ऐसा हो, नो, यू आर डीलिंग ऑलरेडी विद दैट फेलो, राइट? एंड आप कहते हैं कि मुझे लेना तो है लेकिन मम्मी सैंक्शन करेंगी तभी मैं ले पाऊँगा, एंड ड्यू टू सम रीज़न माई मॉम डिडंट कम विद मी, राइट? शी डिडंट कम अलॉन्ग विद मी. तो मैं ले जाऊँ, अगर वो हाँ कहेंगी तो मैं रख लूँगा, और वो ना कहेंगी तो मैं आपको वापस दे दूँगा. एंड ही सेड ओके. हर कोई नहीं कहेगा, कौन कहेगा? जिससे आपकी ऑलरेडी डीलिंग हो रही है, ठीक है? तो दिस इज व्हाट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. आप उसको सेल कब मान सकते हैं? व्हेन यू
give the feedback and there is a time limit, you know. उन्होंने कहा okay fine you can do but बेटा please take care, within 2 days you just give your feedback, either your mom liked it or she didn't like, she rejected, क्योंकि मुझे यहाँ सेल करना है, फिर अगर आपको नहीं लेना है तो आप मुझे रिटर्न कर देना टाइमली, ओके, ताकि मैं आगे इसको बेच सकूँ. Have you understood the concept, students? Right? So what happens in this case? Well, if it is still the approval and the person is waiting कि आपने अप्रूवल दिया और रख लिया, that's fine. तो वो उसको क्या करेगा? सेल रिकॉर्ड कर लेगा. Yes or no? गगन बेटा मैंने अभी अभी रिक्वेस्ट किया, बुक में ढूंढोगे तो घर बैठ के ढूंढ लेना, बाद में ढूंढ लेना, थोड़ी देर रुक के देख लेना. अगर बुक से समझ आने लगे सब चीज़ें इनिशियल स्टेज पे तो टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ बता रही हूँ उसको सुन लो, बुक आपके पास है, अभी टाइम दूंगी मैं नेक्स्ट पीरियड में कि पढ़ो बुक, उस टाइम आप पढ़ेंगे नहीं, इस टाइम आपको बातें करनी है. सो व्हाट इज दिस मैकेनिज्म? इट इज टेलिंग कि आप लेके गए अप्रूवल के लिए, आपने कहा कि हाँ पसंद आ गई है, तो वो क्या करेगा? उसको एज अ सेल रिकॉर्ड कर लेगा. ठीक है, आपने अप्रूवल नहीं दी है, दे दी है तो भी ठीक है, और नहीं दी है, टाइम लिमिट क्रॉस हो गई है, तो भी वो सेल उसको रिकॉर्ड कर लेगा. But sometime by mistake the person takes it as a sale without getting the approval and without finishing the time limit also, right? समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? कि अभी अप्रूवल नहीं आया है, टाइम पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है जो आपने उनको दिया है, और उन्होंने गलती से इसको सेल रिकॉर्ड कर लिया, और फिर उनका सही टाइम पे फोन आता है, वो कहते हैं कि मम्मा हैज रिजेक्टेड दिस, राइट, तो आई एम रिटर्निंग इट, मैं इसको वापस कर रहा हूँ. तो आप क्या करेंगे? आपने इसको सेल रिकॉर्ड कर लिया. सेल रिकॉर्ड करने का मतलब डेटर्स टू सेल्स, ओके, सपोज इट इज नॉट ऑन द कैश बेसिस हियर. ठीक है, डेटर्स टू सेल कर लिया आपने. अब आप क्या करेंगे? ये रिकॉर्ड कर चुके हैं, आपने वेट नहीं किया उनके अप्रूवल का, अब उन्होंने फीडबैक दिया कि माई मदर डिडंट लाइक इट एंड आई एम रिटर्निंग इट. फिर आप क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि सेल तो हुई नहीं है. तो आप क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री कर देंगे, सेल्स को डेबिट एंड डेटर्स को क्रेडिट. अब हमें एंट्री तो करनी नहीं है, रेक्टिफिकेशन एंट्री तो हम कर नहीं रहे हैं, हमें एडजस्टमेंट करनी है. तो व्हाट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स वी आर गोइंग टू डू? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. व्हाट दिस ट्रांजैक्शन इज टीचिंग यू? सेल्स को डेबिट करना मीन्स सेल्स में से माइनस कर देना. क्या? नहीं, इट इज नॉट सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न होता है कि आप नॉर्मली लेके गए हैं एंड ड्यू टू सम रीजन आपने वापस कर दिया है. ठीक है, तो इट इज, इसकी ट्रीटमेंट सेल रिटर्न की तरह होगी, लेकिन ये सेल्स रिटर्न नहीं है. इसमें आप अप्रूवल बेसिस पे देते हैं माल. ठीक है, तो माइनस मान लीजिए 5000 का है, 1000 की आपने गुड्स वापस किए, तो अप्रूवल बेसिस पे जो आपने दिया था वो आपने इसमें से माइनस कर दिया है. ठीक है, एंड सेकेंड प्लेस, जब आपने यहाँ से कम कर दिया तो डेटर्स भी आपको कम करने होंगे, राइट. तो डेटर्स आ गया, जो भी आपके डेटर्स रहे थे, सपोज 50,000 के थे, माइनस अप्रूवल पे आपने भेजा 1000 का, तो ये कितने हो गए? 49,000. इज दैट क्लियर? क्या ये मुश्किल है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? एनीथिंग एल्स इन दिस? Anything else? There is something. Use your mind. Keep your common sense open. अभी गुड्स जब ये चली जाती है तो क्या होता है? आपके स्टॉक पे भी इफेक्ट पड़ता है. जब आपने इसको सेल्स में एंटर कर दिया तो साइड बाय योर क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो इफेक्टेड. आपका क्लोजिंग स्टॉक भी तो कम हो गया होगा ना. 1000 से आपने गुड्स बेची है तो कम हो गया ना. तो अब आप क्या करेंगे? सेकेंड इफेक्ट इसका क्या पड़ता है? योर स्टॉक हैज ऑल्सो कम. आपका स्टॉक भी आ गया है, तो क्या करेंगे? इसको क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर देंगे. अगेन ऑल द एडजस्टमेंट्स गो एट 2 प्लेसेस, एंड आपने जैसे ही स्टॉक में प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक में आपने 1000 प्लस कर दिया, सपोज 10,000 था, 1000 आपने प्लस किया, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी इफेक्टिंग एट 2 प्लेसेस. द फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का था, प्लस 1000 अप्रूवल वाली गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया? 11,000 का एक जगह हो गया.
एंड दूसरी जगह क्लोजिंग स्टॉक यू हैव टू शो इन द असेट साइड ऑल्सो। यहाँ पे आपका 10,000 था प्लस 1,000 अप्रूवल बेसिस पे 11,000। इज दैट क्लियर? समझ आया? तो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, दिस इफेक्ट्स एट 4 प्लेसेस। ओके, अब आपको उसे पहले सेल रिकॉर्ड कर दिया गलती से, उसका इफेक्ट खत्म करना है तो सेल्स को कम कर दो, ठीक है, डेटर्स को कम कर दो, इफेक्ट खत्म। एंड साइड बाय योर गुड्स यू आर रिसीविंग योर गुड्स ऑल्सो, ठीक है, आपकी गुड्स भी वापस आपके पास आ रही हैं, तो गुड्स आ रही हैं तो आप क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। ऑलराइट, so today we have completed this chapter, all the adjustments we have done, but we have completed, I mean I have completed from my side, but you didn't complete this chapter, and a few students they didn't start doing the chapter even. So please take your time, complete this chapter, and while doing this, if you have any problem, any query, so you are free to ask, and especially those students who are staying at home, if you have any doubt, so you are most welcome, you can ask that. Okay, so try to do the maximum questions, and tomorrow I will be taking one complete question, and if we'll have time so we can take more than one question also if we could complete it. All right students, so you will be knowing how to deal with all these adjustments. Thank you.